HOD Geoinformatics, Ligmat Foundation, New Delhi. Uh, Today's theme of the webinar is geoinformatics technique and career opportunities. Everybody seems to cry that there's no employment. In fact, you will have to search the fields where you can easily get employment or where opportunity prevails. So this is one such effort that we have arranged such type of webinar. So our keynote speaker, Mr. Tiwari, will aware you about the hidden opportunity in geoinformatics. You can start now, sir. Thank you. Thank you, Dr. Sunita Menjwal ma'am, and thanks to all our students. Here I would like to share something. Ma'am, my audio and video is clear. Please see. My screen is visible to all of you. Audio and video. Sir. Note now. I have shared my screen, and so is it visible or not? No, sir, it is not visible. Okay, I'm trying again. PPT to share. The screen is visible. Yes, sir. Now it is going. Yeah. Okay. Okay. Thank you, ma'am. Thanks to Ms. Sunita Benwal, ma'am, in charge Geography Department, Government College, Bilhar, Jhajjar. And thanks to our principal, Sri Raj Kumar Verma, and Sri Pradeep sir, Ombi sir, and the placement coordinator sir, Dr. Amardeep. Dr. Amardeep sir is available here. Dr. Amardeep sir is available here. May I talk to him? Sir, he's not sitting and joining from somewhere. He's presently not in this room. He had joined earlier, but still I will talk to him. Okay, sir. Any other faculties here is here? Yeah, Ombi sir is here. Okay, Ombi sir is here. Ombi sir, Pawan sir, he is here. Ombi sir, अपना कैमरा ऑन कीजिए. मैं देखना चाह रहा था आप लोगों को. You all have stopped your camera. Sir. Okay. Okay, now. Thank you, sir. So my screen is visible to this is thanks to all staff, geography departments, teachers and students. Thanks for giving the time to share the things in front of you. NIGMP Foundation is basically the skill partner of ICDM to be University Churu, Rajasthan, and we are also the academic partner of CCS University's College, Raghunath Girls Post Middle College, and one other university, that is Chaudhary Bansilal University. It is in Bhiwani, and we are giving the continuous skill for geographers in geoinformatics domain. So let's start, students. I think you know about remote sensing and GIS because it is in your curriculum, it is in your syllabus. As per my concern, what is geoinformatics? I was showing you the video in the starting of the session. Let's see how this very senior person, or you can say the governing body of the India, is trying to focus or trying to give the message that the all department of all state of India is trying to use this technology for any kind of governing the things, monitoring the things, and planning the things. And this is the technology of the same, that is space technology, as you can say, the spatial technology
or you can say it is simple digital cartography, as you know about this. Because you are geographers, you know better how to prepare a map and how to read the maps and what are the use of these maps. Of course, the maps are very important things, but now the requirement has been changed this time. हमारे जैसा आपको पता है कि हमारे जो पुराने लोग थे वो 10th 12th और ग्रेजुएशन पास करते ही मास्टर्स जैसे उनका क्रॉस होता तो उनकी जॉब लग जाती थी, पर आज के टाइम में ऐसा नहीं है। मास्टर्स करने के बाद, बीएड करने के बाद, एमए करने के बाद, पीएचडी करने के बाद भी जनरली लोगों की जॉब्स नहीं लगती। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है सारे लोगों के लिए कि हाउ वी कैन टेक अ गुड अपॉर्चुनिटीज एंड वी आर ट्राइंग टू गिव द अपॉर्चुनिटीज हियर। डिजिटल रिक्वायरमेंट्स, डिजिटल मैप्स की रिक्वायरमेंट जो भी हो रही है जियोइन्फॉर्मेटिक्स में, आप लोगों को डिजिटल मैप बनाना आना चाहिए। जैसे आप लोग जनरली टोपो शीट से मैप बनाते हैं, ट्रेसिंग शीट से ड्रॉ करते हैं, मैप वगैरह ड्राइंग वगैरह बनाते हैं, अब वो ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया है। एंड दीज ऑल ट्रेंड्स आई विल डिस्कस ड्यूरिंग माय सेशन। जियोइन्फॉर्मेटिक्स टेक्नोलॉजी आपको ये बताती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कितनी है, किधर उसका पैटर्न चेंज हो रहा है, और अगर कुछ डिजास्टर होता है, नेचुरल क्लामिटी होती है, फायर या फ्लड जैसे इंसिडेंट होते हैं, तो उस केस में लॉस कितना है, उसका इम्पैक्ट कितना है, that all kind of assessment you can do with the help of this technology. Generally, as per my concern, that this technology include these all technology. You can say geoinformatics is the integration of GIS, photogrammetry, remote sensing, drone, lidar, geodatabase, information technology, IT, and GPS. So when we integrate these all technology, then you can say yes, it is cartography. And not only this, there is number of more technology. सर्वेइंग का बहुत सारा पार्ट इसके अंदर मिसिंग है, आप इसमें जोड़ सकते हैं। इंजीनियर्स जो कैड कैम, ऑटो कैड वगैरह का जो ड्राइंग वगैरह ड्राइंग करते हैं, बीटेक स्टूडेंट करते हैं, these all things comes under this technology. So it's complete package of technologies. We'll go one by one. This is important for a lot of you guys. Geo IT. Geo means geography, geographical things. Either it could be natural or कल्चरल, और वो इंफॉर्मेशंस हम इस तरीके से रखें कि हम उसको किसी भी कैंडिडेट्स के साथ शेयर कर सकें, अपडेट कर सकें, चेंज कर सकें। या जैसे आईटी का रोल, बहुत बड़ा रोल है आपसे बात करने में। मैं इतना दूर बैठा हूँ और आप वहाँ बैठे हुए हैं, और ये आईटी है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट है और गूगल मीट है, जिसकी वजह से हम लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं, एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सिमिलरली यही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब ज्योग्राफी के साथ मिल जाती है तो इसका जो स्कोप है, इसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। मैक्सिमम एरियाज में इसका यूज होने लगता है। अब इसमें काम करने के लिए हमें सैटेलाइट इमेजरी चाहिए होती है, ड्रोन डाटा चाहिए, एरियल फोटोग्राफ चाहिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चाहिए, और जिसमें हम लोग 2D मैप्स, 3D मैप्स, अलग अलग टेक्नोलॉजी के डेटा बनाते हैं और इस तरीके से डेटा बना के एक जगह स्टोर कर देते हैं, सेव कर देते हैं, सर्वर में रख देते हैं, गूगल पे रख देते हैं, गूगल ड्राइव पे रख देते हैं। जैसे आप अपने मोबाइल फोन में रखते हो सारा डेटा, आर दबाओ, आर नाम से सारे लोग एक साथ आएंगे। अपने मोबाइल फोन में गूगल ऑन करो और उसमें लिखो हॉस्पिटल नियर मी, एटीएम नियर मी, तो आपको पॉपअप करके बता देगा यहाँ पर हॉस्पिटल है, यहाँ पर। हाउ these all things are coming? These all things are coming from the database, digital database of the earth. अर्थ पे क्या है? अर्थ पे एवरीथिंग इज ऑन द अर्थ। जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है सब अर्थ पर तो हो रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको डिजिटली अगर एक जगह मिलती है, उसमें आईटी का बहुत बड़ा रोल है। लेट्स अंडरस्टूड अबाउट जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी। आज हम लोग जिस टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, so that you can better understand about this technology. So please see this video and I will ask the question related to this. See this video, my students. I am everywhere. You might not always see me, but I am everywhere. Connecting, innovating, and threading things together. I bring you direction, making your lives fast and efficient. I am
the digital thread. I connect you with the real world and help you see what belongs where. I integrate and visualize enormous amounts of data for better decision making. We share the same goal. I'll help you see better, lead better, be smarter. I save water, one of the most essential elements of life. I help optimize the agricultural ecosystem. I help you build stronger. I am the backbone of every smart city. I have tracked, traced and located, giving unique data insights, giving clear vision, creating sustainable economic development and enabling high quality of life. I help you become a smart citizen. Streamlining the data, accelerating businesses, reducing the digital divide, empowering humanity. I am the facilitator. I am your process. I am the foundation for building better futures. Everything is digital. Everything is connected. I am the digital thread, driving technological convergence, creating system of systems. Together, we ignite, innovate, integrate. I am geospatial. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हो गए जिनको इसके बारे में जानना अभी और भी बाकी है, लोग जानेंगे। किसी को आइडिया लगा कि जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी क्या है एंड हाउ इट इज वर्किंग? एनीवन प्लीज गिव द आंसर। आप अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अपने क्वेश्चंस के आंसर। जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी आपको देखने के बाद क्या क्लियर हुआ? अच्छा, वॉल्यूम स्लो था, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, सॉरी। जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी में आपको ये बताया गया, ये समझाने की कोशिश की कि अर्थ पर जो भी इंफॉर्मेशन है, अर्थ का जो भी डेटा है, ज्योग्राफी का जो भी डेटा है, वो सारा का सारा इस तरीके से रखा जाए कि हम लोग उसको एक्सेस कर पाएँ, यूज़ कर पाएँ, अलग अलग पर्पज से हम उसको शेयर कर पाएँ। These all comes under geospatial technology. The next one is, स्टूडेंट्स आप लोग अपने क्वेश्चन चैट बॉक्स में कंटिन्यूस डालते रहें ताकि मैं आपसे इंटरेक्ट कर पाऊँ। इस टेक्नोलॉजी के अंदर कितनी जो इन्फॉर्मेशन आती हैं आप लोगों से मैं डिस्कस स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, स्मार्ट सिटी से। आप लोगों ने स्मार्ट सिटी के बारे में सुना होगा, व्हाट इज स्मार्ट सिटी एंड हाउ स्मार्ट सिटी इज वर्किंग। स्मार्ट सिटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ हम वहाँ के लोगों को दे पाएँ। दैट इज सिंपल कॉन्सेप्ट। एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ देने के लिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है। अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से मिलेगा, कौन कौन से टूल्स मिलेंगे, उसके लिए क्या बजट होगा, कब वो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों तक पहुँच पाएगा, वो सारा स्मार्ट सिटी के अंदर डिस्कस किया गया है। और स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है, स्टार्टिंग में जब ये प्रोजेक्ट इंडिया में आया तो लगभग 100 स्मार्ट सिटीज बनाने की प्लानिंग की गई। 100 स्मार्ट सिटीज बनाने के बाद जब वो 61% या 70% के आसपास वो प्रोजेक्ट सक्सेस हुए तो गवर्नमेंट ने अनदर नेक्स्ट 100 स्मार्ट सिटीज प्लान किया। अब लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बोल भी दिया है, जिसमें से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो रखा है और भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होना अभी बाकी है स्मार्ट सिटी के लिए। वो प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ हैं, किस किस सेक्टर्स में है और आप लोग उस प्रोजेक्ट का पार्ट कैसे बन सकते हो। एज ए ज्योग्राफर अगर आप चाहो तो किस तरीके से आप जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ मैं आपसे, स्मार्ट सिटी में हमें जो GIS का डेटा बना के गवर्नमेंट को सबमिट करना होता है। अब वो डेटा हम कैसे सबमिट करेंगे या वो डेटा क्या है, एक छोटा सा वीडियो आप देखो तो आपको पता लग जाएगा कि स्मार्ट सिटी में कौन कौन से प्रोजेक्ट आते हैं और उस प्रोजेक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। फिर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा कि कैसे स्मार्ट सिटी का डेटा तैयार किया जाता है। फर्स्ट यू सी दिस वीडियो। सन 2015 से शुरू हुआ देश का अब तक का सबसे बड़ा अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। इसे विजन का नाम है अमृत। एक ऐसा सर्विस लेवल इंप्रूवमेंट प्लान जो शहरों को जड़ से सशक्त करे। इस देश के 40% जनसंख्या
जो या तो शहरों में जीवन गुजारा करती है या शहरों पर आधारित अपना जीवन गुजारा करते हैं, उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे मिले, एक सामान्य मानवीय की जो प्राथमिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति कैसे हो। जब पूरे विश्व का ध्यान भारत की तरफ है तो हम दुनिया जिन ऊंचाइयों पर पहुंची है उसे बराबरी करने की दिशा में और उससे आगे बढ़ने की दिशा में पहल कैसे करें, प्रारंभ कैसे करें और किस दिशा में आगे बढ़े। लक्ष्य था सुविधाओं के स्तर में सुधार लाना और ये सब कुछ करेगा अमृत 1,00,000 करोड़ रुपए के खर्च पर। हर घर पानी पहुंचाने के लिए वाटर स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और वाटर रिसोर्सेज, इनमें से कोई एक भी पहलू में गड़बड़ हुई तो पूरे शहर का वाटर सिस्टम लड़खड़ा जाता है। इस गैप को भरने का काम है अमृत मिशन का। शहरों में सीवरेज सिस्टम के योग्य कार्यान्वयन के लिए उसके संवर्धन, विकेंद्रीकरण और रिहैबिलिटेशन का कार्य भी होगा और वाटर रिसाइकलिंग के द्वारा उसके रीयूज की भी व्यवस्था की गई है। मल प्रबंधन, सुअर और सेप्टिक टैंक की मैकेनिकल और बायोलॉजिकल सफाई जैसे कार्यों को भी दी जाएगी प्राथमिकता। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर होगा, पैदल और साइकिल रास्तों का निर्माण होगा ताकि नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट के लिए हो बेहतर सुविधाएं और प्रदूषण का स्तर भी हो कम। बगीचे और पार्क्स भी होंगे। ये वीडियो में इसलिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि स्मार्ट सिटी के अंदर जो स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की हुई है वो स्कीम किस किस तरीके से काम करेगी और आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। मेरा स्क्रीन विजुअल हो रहा है, आप लोगों को सबको दिख रहा है स्क्रीन? यस सर, दिख रहा है। ओके, थैंक यू। अभी जैसे एग्जांपल की बात करूं मैं आपसे, स्मार्ट सिटी का डेटा कैसे बनेगा, स्मार्ट सिटी का डेटा किस तरीके से तैयार होगा, मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा था आपको। यहाँ पर आप देखो एक शहर है इधर गाजियाबाद के अंदर कुछ डेटा हम लोगों ने, हमारे स्टूडेंट्स ने बनाया हुआ है और उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी डिटेल डाली हुई है। मैं वो डिटेल आपको दिखाता हूँ तो आपको आइडिया लगेगा। ठीक, दिस डेटा इसमें इन्होंने इस तरीके से डेटा बनाया हुआ है गाजियाबाद का कि आप अगर किसी भी बिल्डिंग में क्लिक करते हो तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगा और ये गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के डेटा की जरूरत गवर्नमेंट को अक्सर पड़ती रहती है। वो इसलिए पड़ती है क्योंकि उनको डिसीजन लेना होता है। मैंने कहा कि जब आप क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, सर्विस लेवल इंप्रूवमेंट की बात करते हैं तो उस केस में आपको डिजिटल डेटा की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। जब तक आपके पास डिजिटल डेटा नहीं होगा तब तक आप डिसीजन नहीं ले सकते। अब वो जो डेटा जीआईएस बेस्ड, ये मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ कि ज्योग्राफी में आप लोग डेटा तैयार करते हैं, आप लोग मैप्स तैयार करते हैं, लेकिन अभी वो मैप बनाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। इंडस्ट्री में जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, और यही एक गैप है एकेडमिक्स में और इंडस्ट्री के बीच में। उस गैप को फिल करने के लिए हम लोग ये सारे प्रोग्राम चलाते रहते हैं। हम एक बार देखता हूँ गूगल अर्थ, शायद मेरा चल जाए। ये गाजियाबाद एक सिटी है, इसमें इन्होंने सारे के सारे बिल्डिंग्स बना रखी हैं और उसका सर्वे कर रखा है और सर्वे करने के बाद उसकी डिटेल डाल रखी है। डिटेल इन्होंने इस लेवल पे डाल रखी है कि किसी भी तरीके का प्लान अगर आपको करना है वो आपको इजीली दिख जाएगा। एक बार ट्राई करता हूँ। So screen is not visible. अंशु, आपको दिख रहा है स्क्रीन? No sir. किसी को स्क्रीन नहीं दिख रहा? एक मिनट में शेयर करता हूँ। अभी मेरे ख्याल से विजुअल होगा। सर इट्स विजिबल। हाँ अभी आ रहा है, ठीक है।
तो अब ये देखो इस तरीके से मैप इन्होंने बनाया हुआ है और इस मैप में सारी की सारी डिटेल इन्होंने फिक्स की हुई है। गाजियाबाद के अंदर, सॉरी यूपी में गाजियाबाद। और आप देखिए सारा का सारा मैप इस तरीके से बनाया, बट ये नहीं पता हो रहा है, ये पता नहीं चल पा रहा है। और ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप डिजिटल इंडिया की बात करते हो, स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, तो आपको हर एक घर की सारी डिटेल चाहिए ही चाहिए। यही आपको करना है, यही आपको बनाना है। बना कैसे, ये देखो आप सी आप इस लोगों को सबको दिख रहा है ये वाले मैप सबको। अब ये जो मैप आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ये मैप दिख रहे हैं क्या? These maps are click on this building। अगर आप किसी बिल्डिंग में क्लिक करते हैं, ओके थैंक यू, अपना माइक बंद कर दीजिए, थैंक यू। जैसे मैं इस बिल्डिंग में क्लिक करता हूँ, यू सी द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस बिल्डिंग। अब इस बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन क्या आ रही है? दिस बिल्डिंग इज रेजिडेंशियल बिल्डिंग। द नेम, जो नेम प्लेट लगा है वो श्री कृष्ण कुंज का नेम प्लेट लगा है उस बिल्डिंग में। ओपी चिकारा इज द मेन ओनर ऑफ दैट बिल्डिंग। सेक्टर 2 पर है ये बिल्डिंग। देयर इज 2 फ्लोर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। एंड द पीपल हु वेंट in this area and collected the information regarding this, the surveyor is Nepal. Location is here, building number 72, ID number is here, survey date is here. You see here the number of people living here, and 5 people are there, 3 male, 2 female and 1 working people is here. So once you got these kind of information कि एक बिल्डिंग में कितने लोग हैं, उसमें मेल कितने हैं, उसमें फीमेल कितने हैं, उसमें नौकरी करने वाले लोग कितने हैं, ये सारा का सारा डाटा आप डिजिटली आपको बनाना पड़ेगा। इस लेवल की इंफॉर्मेशन जब तक ज्योग्राफर नहीं बनाएगा, वो ये स्किल्स उसके लिए बहुत जरूरी हो गई है। क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट की स्कीम आ रही है, अभी जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उन सब में ये काम होना। और अभी तो मैंने बिल्डिंग की बात की, जमीन पड़ी है, ओपन लैंड यहाँ पर जो पड़ा हुआ है, इस ओपन लैंड की रहेगी, who is the owner of this land and what type of land is here। इस और गवर्नमेंट इस चीज को समझ योजना, अमित योजना गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है, जिसमें ज्योग्राफर, स्किल्ड ज्योग्राफर की जरूरत है, जो मास्टर्स ज्योग्राफी कर रहे हैं या ग्रेजुएशन ज्योग्राफी से कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि विलेज लेवल पर गवर्नमेंट ये प्लान लॉन्च कर रही है। सी दिस वीडियो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। आप लोगों में से किसी ने स्वामित्व योजना का नाम सुना है क्या? एनीवन हैव यू लिसन अबाउट स्वामित्व योजना स्कीम? स्वामित्व योजना के बारे में आपको पता है किसी को? अभी 2020 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हुआ है और इसमें बहुत तगड़े तरीके से वैकेंसी जाएंगे विलेज लेवल पे, क्योंकि ये सारा काम उनको करना है। इंडिया के हर एक विलेज में इस तरीके के मैप्स बनने हैं। सी दिस वीडियो।
गांव में बसती है, जहां 60% आबादी निवास करती है, लेकिन अधिकांश ग्रामीणों के पास अपनी आवासीय संपत्ति के कागजात नहीं है। अंग्रेजों के समय से देश के ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि का बंदोबस्त होता रहा है, लेकिन अधिकांश राज्यों में गांव की आबादी क्षेत्रों का सर्वे और मापन संपत्ति के सत्यापन के दृष्टिकोण से नहीं हुआ है। फलस्वरूप अधिकांश ग्रामीण घरों के संपत्ति के कागजात मौजूद नहीं है। मालिकाना हक की गांव की इस जरूरत को पूरा करेगी भारत सरकार की स्वामित्व योजना। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों की आवासीय भूमि की पैमाइश ड्रोन तकनीक के द्वारा की जाएगी, जो सर्वेक्षण और मापन की नवीनतम तकनीक है। इस देशव्यापी पैमाइश में भारत का पंचायती राज मंत्रालय, राज्यों के पंचायती राज तथा राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग शामिल होंगे। ड्रोन से गांव की सीमा के भीतर आने वाली प्रत्येक संपत्ति का डिजिटल रूप से नक्शा बनाया जाएगा। साथ ही प्रत्येक राजस्व खंड की सीमाओं का निर्धारण किया जाएगा। सटीक मापन के आधार पर गांव की प्रत्येक घर का संपत्ति कार्ड राज्य सरकारों के द्वारा बनाया जाएगा। इस तरह से यह क्रांतिकारी कदम संपत्ति के मालिक को सुगमता से मालिकाना हक प्राप्त करवाएगा। इस मालिकाना हक से गांवों के निवासी अपनी संपत्ति का वित्तीय उपयोग जैसे कि ऋण लेने में सक्षम होंगे और गांवों के आवासीय क्षेत्र का रिकॉर्ड पंचायतों को प्रदान कर सकेंगे। इससे संपत्तियों का कर के दायरे में आना और पंचायतों द्वारा आसानी से कर संग्रह संभव हो पाएगा। इस आमदनी से पंचायतें ग्रामीण नागरिकों को बेहतर सुविधा दे पाएंगी। संपत्ति के स्पष्ट आकलन एवं स्वामित्व का निर्धारण होने से उनके मूल्य में ही वृद्धि होगी। ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक के उपयोग से ग्राम पंचायत के पास गाँव का सटीक रिकॉर्ड और मानचित्र होगा, जिसका उपयोग कर वसूली में, भवन निर्माण हेतु परमिट जारी करने में, अवैध कब्जा समाप्त करने आदि के लिए किया जा सकता है। हमारा देश बदलते समय के साथ कदम से कदम मिलाकर उन्नत तकनीक का भरपूर उपयोग करते हुए विकास के मार्ग पर लगातार आगे बढ़ रहा है। इस वीडियो से आपको क्या समझ आया? इस वीडियो से आपको क्या समझ आया? जो भी हमने आपको डिस्प्ले किया, उससे आपको क्या आइडिया लग रहा है? Anyone give me the clue what you understood from this? Anyone? And why it is important? अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो फिर तो वेबिनार का कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना। वैसे भी मेरे ख्याल से 20 के आसपास बच्चे हैं। पूरे क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं आपके यहाँ फाइनल ईयर में। Any students, please give me the answer what you understood from this video. ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाई, इसमें से आपको क्या समझ आया? बिल्कुल हिंदी लैंग्वेज में बताइए, वैसा कुछ नहीं है। और इसका क्या बेनिफिट हो सकता है डिपार्टमेंट को? कोई भी स्टूडेंट इसका आंसर दे, फिर मैं नेक्स्ट आगे प्रोसेस करूँ। एनीवन यू कैन राइट। अगर आपको बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके ठीक है, चलो कोई आंसर नहीं देगा इसका। इसमें ये बताने की कोशिश की गई है इस वीडियो में कि गवर्नमेंट कैसे पंचायत लेवल पर, और इस पे काम करने के लिए हमें लोग चाहिए, हमें स्टूडेंट्स चाहिए, और क्या उनको इसका आइडिया है, उनके लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी है पंचायत लेवल पर। अभी पटवारी लेवल पे जो स्कीम्स आएंगी, पटवारी लेवल की जो वैकेंसीज निकलेंगी, वहां पर ऐसे लोग चाहिए। तो आपको ये सारी चीजें सीखनी और समझनी पड़ेगी। डिजिटल मैप्स बनाना पड़ेगा। आप लोगों में से किसी ने डिजिटल मैप बनाया है क्या? इसमें मास्टर्स की स्टूडेंट है सुनीता मैम, या ग्रेजुएट की स्टूडेंट है, या दोनों मिक्स है? सुनीता मैम आपका माइक शायद बंद है। देयर इज मास्टर्स स्टूडेंट और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आर बोथ? सुनीता मैम आपका माइक शायद बंद है। ओनली ग्रेजुएशन सर।
मास्टर से होना चाहिए ना। आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए, ठीक है, थैंक यू। अब इस तरीके से और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग सब उस मूड में है नहीं। देखिए, ये एक टेक्नोलॉजी है DGPS की, और आप लोगों ने भी शायद यूज किया होगा। तो आप लोगों ने टोटल स्टेशन यूज किया होगा, थर्डोलाइट यूज किया होगा, फील्ड सर्वे में आप लोगों ने जैसे क्वेश्चनर लेके आप फील्ड में जाते हैं, वहां पर आप लोगों ने काम किया होगा। इन सब टेक्नोलॉजीज में एप्लीकेशन है GPS का, DGPS का, और एक टेक्नोलॉजी है ड्रोन और एक टेक्नोलॉजी है GPS। एक कैंडिडेट्स ने ड्रोन को और GPS को मिला दिया, एक साथ कर दिया। ये जो ड्रोन जो आपको दिख रहा है 2.5-3 लाख रुपए का, और ये जो यहाँ पे DGPS दिख रहा है ये कम से कम 10-12 लाख रुपए का आता है, और इसको मिला करके इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसकी कीमत 4.5 लाख रुपए हो गई। और इसका फायदा ये है कि आपको 3 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी दे सकता है। 3 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि आपकी छत में जो रखी हुई ईंट है, जो ब्रिक्स दिख रही है, उसका भी लेंथ, विड्थ, हाइट कितना है वो सारा मेजरमेंट हो सकता है इस टेक्नोलॉजी के यूज से। और इसका फायदा ये है कि एक्स में एक्यूरेसी और वाई में एक्यूरेसी बिल्कुल फिट आती है। जितना आप पेपर में मेजरमेंट करोगे, रियल वर्ल्ड में अगर आप रियलिस्टिक ग्राउंड में जाके मेजरमेंट करने जाओगे तो आपको उतना ही मिलेगा। ये इसका फायदा है इस टेक्नोलॉजी का। इसी तरीके से एक और टेक्नोलॉजी है दैट इज कॉल्ड GPR, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। ये टेक्नोलॉजी क्या करती है, ये आपको सीखना बहुत जरूरी है। सारे जोग्राफर जो मास्टर्स हैं, जो जोग्राफर हैं, ये इस चीज को जाने और समझें, क्योंकि इसी में ही आपका करियर है। अगर आप ये नहीं सीखोगे तो मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ खास डेवलपमेंट हो पाएगा। इस टेक्नोलॉजी से फायदा ये होता है कि जमीन के अंदर 15 फीट 10 से 15 फीट तक कोई भी चीज अगर है उसका मैप बन जाता है, बाय डिफॉल्ट मैप बनता है। अभी हम लोग के पास एक नागल रेलवे स्टेशन करके एक जगह है, और इस नागल रेलवे स्टेशन में कुछ नई पाइपलाइन जानी थी, तो वहाँ के रेलवे डिपार्टमेंट ने बोला कि अगर आप GPR सर्वे करा दें तो जो एग्जिस्टिंग पाइपलाइंस हैं उनको उखाड़ना नहीं पड़ेगा, और आपको पता लग जाएगा वो कितनी जमीन के अंदर कितनी धसी हुई है, जमीन के अंदर कितना है वो। अगर वो 8 फीट नीचे या 4 फीट नीचे या 5 फीट नीचे पुरानी पाइपलाइन है, और अगर आपको नई वायर बिछानी है, नई टेली कम्युनिकेशन आजकल आया है ना, फाइबर जियो, उसको लगाना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसमें JCB चलवाइएगा। सी दिस, ये देखिए, तो वो आपको दिखाना चाह रहा था कि किस तरीके से गवर्नमेंट यूज कर रही है टेक्नोलॉजी को अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स में। ये है वो डेटा। ये रेलवे स्टेशन में जो फीचर बने हुए हैं, अगर आप जाकर देखें लिस्टिंग में तो आपको पता लगेगा कि जो बड़ी बड़ी ड्राइंग्स होती हैं उसमें पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सी चीज कहाँ पर है। अब ये पूरा का पूरा एक रेलवे स्टेशन है, नागल रेलवे स्टेशन, जिसपे काम करने के लिए हमारे स्टूडेंट्स को बोला गया था कि आप इसमें काम कीजिए। सी है, यहाँ पर हमने GPR सर्वे करवाया। GPR सर्वे करे बता, ये देखो यहाँ पर देखें आप ध्यान से, ये एक रेलवे लाइन जा रही है। सी दिस रेलवे लाइन में हमें कुछ और भी पाइपलाइन वहां बिछानी है। तो यहाँ पर हमें अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हाइट आ जाएगी 1.1 मीटर पर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर 0.89 मीटर पे है, यहाँ 1.3 मीटर पे है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन के जो रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ अलग अलग इलेक्ट्रिक पोल लगे हैं, पावर पोल लगे हैं, सारे के सारे। देखो यहाँ दिख रहा है 3 मीटर नीचे यहाँ पर कुछ है, 2.5 मीटर नीचे यहाँ पर कुछ है, इसी तरीके से यहाँ पर है। देखिए तो ये GPR सर्वे है, और ये सर्वे की टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सर्वे टेक्निक सीखते हैं, समझते हैं, अभी दिख रहा है, अभी स्क्रीन क्लियर है? नो सर, यस सर, अब आ गई। हाँ, तो देखिए यहाँ पर ये है, इस पूरे रेलवे स्टेशन में GPR सर्वे करना है। अभी धीरे धीरे गवर्नमेंट मैंडेटरी कर रही है कि जितने रेलवे स्टेशन है, अब सोचो कितने रेलवे स्टेशन है इंडिया में, सारे रेलवे स्टेशन का इस तरीके से GPR सर्वे होना है, ताकि ये पता रहे
कि रेलवे स्टेशन का जो ट्रैक जा रहा है उनके दोनों किनारों पे क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ें नहीं है, ताकि अगर और कुछ नई वायर जमीन के अंदर बिछानी हो, लगानी हो, तो आप वो पता रहे। और उससे फायदा ये होता है कि अब देखो, आप शहरों में देखो, शहरों में जब कुछ न कुछ, कभी नाली जेसीबी आके नाली ब्रेक कर देती है, कभी इंटरनेट का वायर टूट जाता है, कभी पानी का कनेक्शन कट जाता है, जो कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, रोड में खुदाई चल रही होती है, तो एक्चुअली में उस समय उनको ये पता नहीं होता कि इसके अंदर क्या है। अभी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये बताने, ये जीआईएस बेस्ड मैप बनवा रही है कि शहरों में, शहर के अंदर रोड के किनारे या रेलवे किनारे जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो सीवर लाइन हो, चाहे पाइप लाइन हो, चाहे वो कम्युनिकेशन की लाइन हो, चाहे वो जियो फाइबर की लाइन हो, कितनी गहरी है और क्या चाहिए, तो ये सारा करना है। और ये सारा हमारे स्टूडेंट्स करते हैं, फील्ड में जाके डेटा कलेक्ट करते हैं। और यही रीजन है कि उनका, हम अगर, हमारा जो 1 ईयर पीजी डिप्लोमा का प्रोग्राम है, उसकी खास बात ये होती है कि हम इन बच्चों को इस प्रोजेक्ट पे काम करवाते हैं। इस प्रोजेक्ट पे काम करवाने से बेनिफिट ये होता है कि उनको लाइव प्रोजेक्ट का एक्सपोजर हो जाए। अब वो डे 1 से किसी भी इंडस्ट्री में जाके काम कर सकते हैं, उनकी जॉब लग सकती है। नॉर्मली स्टूडेंट जो फ्रेशर आता है उसको उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता। जो स्किल्ड रिसोर्स होता है, जिसको आइडिया होता है टेक्नोलॉजी का, वो कर लेता है। तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो जोग्राफर्स हैं, जो मास्टर्स हैं या ग्रेजुएट्स हैं, उनको ये सब चीजें सीखने और समझने की जरूरत है। कुछ क्वेश्चन हो आप लोगों के, तो आप लोग पूछिए, पूछ सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अब देखिए, यहाँ पर वैकेंसी निकली है, ध्यान से देखिए। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपको 5 मिनट के लिए। टाइम हमारे पास कम है एक्चुअल में, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम चीजें आप लोगों के सामने डिलीवर करूँ। देखिए, यहाँ पर एक वैकेंसी निकली हुई है, लिखा है डायरेक्टरेट ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा। इसमें वैकेंसी है, देखिए, इन्फॉर्मेशन ऑफिसर की और पीजी डिप्लोमा रिमोट सेंसिंग जीआईएस मांग रहा है। ऐसे ही आईटी ऑफिसर जीआईएस एक्सपर्ट की वैकेंसी निकली है, यहाँ भी पीजी डिप्लोमा रिमोट सेंसिंग जीआईएस मांगा है। एज लिमिट ऊपर वाले में 35 ईयर है, नीचे वाले में 30 ईयर है। सैलरी 35,000, नीचे 28,000 है। तो ये सब एक्सपीरियंस हम आपको दे देंगे। डिप्लोमा भी हम आपको यूनिवर्सिटी अप्रूव दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पर वैकेंसीज है, प्रोजेक्ट मैनेजर, जीआईएस स्पेशलिस्ट, लैंड रेवेन्यू स्पेशलिस्ट, और भी है आईटी स्पेशलिस्ट, डीजीपीएस सर्वे और सर्वेयर्स। ये सारे सर्वे का, ये बॉयज के लिए भी, गर्ल्स के लिए अलग अलग काम होते हैं। यहाँ पर अगर मैं स्क्रीन आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये देखिए, डीजीपीआर सर्वे। जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ वो 3D मैप्स बनाते हैं। 3D मैप्स बनाने के लिए इस तरीके के 3D मैप बनते हैं। देखिए, यहाँ ये मैप्स बनाने से फायदा ये होता है, इंडिया का सबसे बड़ा ब्रिज है चिनाब ब्रिज। चिनाब ब्रिज की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, ये सारा का सारा हमने ड्रोन टेक्नोलॉजी से स्टूडेंट के साथ करवाया। और पूरा चिनाब आपकी स्क्रीन के सामने। चिनाब ब्रिज एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज है। अब यहाँ आप देखिए, इसमें आप इसकी लेंथ, विड्थ, हाइट सब कुछ यहीं से मेजरमेंट कर सकते हैं। अब आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। इंजीनियर के लिए ऐसा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि वो प्लान कर पाए अपनी चीज़ों को। कौन सा एरिया कहाँ पर है, कितना यूज हो रखा है, कितने में टैक्स लेना है, कितने में पार्किंग है, तो सब कुछ यहाँ मेजरमेंट हो रहा है। इसमें लेंथ, विड्थ, हाइट सब कुछ मेजरमेंट हो जाएगी। अगर मान लो कहीं पर मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, अगर उस मिट्टी के ढेर को खाली खत्म करना है, तो यहीं से बैठे बैठे पता लगाया जा सकता है कि इसको खत्म करने में इतने ट्रक लगेंगे। देखो, यहाँ पर मेजरमेंट हो जाएगा इसका, आराम से मेजरमेंट कर लेगा कितने ट्रक मिट्टी यहाँ पड़ी हुई है। तो ये सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है मैपिंग की, बिल्कुल लेटेस्ट, जिसमें आप काम करोगे, सीखोगे, ताकि आप गवर्नमेंट को हेल्प कर पाओ, डिपार्टमेंट को हेल्प कर पाओ, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, और चाहे वो सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो। तो इस तरीके की मैपिंग आप सीखोगे, समझोगे पूरे इस प्रोग्राम में। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था जॉब वैकेंसीज कैसे कैसे निकलती हैं। ऐसे यहाँ पर देखिए, कुछ वैकेंसी निकली हुई हैं। यहाँ पर है कार्यालय आरएम टिहरी गढ़वाल। यहाँ पर भी ये देखो, पीजी डिप्लोमा रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस मांग रहा है, 30,000 सैलरी है। यहाँ भी पीजी डिप्लोमा रिमोट सेंसिंग जीआईएस मांग रहा है, सेम 20,000 सैलरी। लेफ्ट साइड में अगर आप देखें, गवर्नमेंट ऑफ मेघालय, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट,
ये मैं इसलिए आपको सब दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। इसके अलावा भी आप गूगल पे जाके अगर सर्च करें, दिल्ली ने शुरू स्टार्ट कर दिया है अभी कि आप किस तरीके से जीआईएस एक्सपर्ट को यूज कर सकते हो ट्रांसपोर्ट, है ना। कुछ वैकेंसी तो अभी भी निकली हुई है, लेफ्ट साइड वगैरह आप जाके देखें, ये वैकेंसी ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेफ्ट अभी करेक्ट वही है। और अभी भी जिन लोगों को जीआईएस की नॉलेज है, इधर वसुंधरा गाजियाबाद में एक कंपनी है जिसको 10-15 लोग चाहिए, 15-20 हज़ार रुपये सैलरी भी ऑफर कर रहे हैं, लेकिन उनको ये सब काम आना चाहिए, उनको ये सारी टेक्नोलॉजी हैंड्स ऑन पता होना चाहिए। दे कैन गो, वॉक इन इंटरव्यू वहाँ चल रहा है, यू कैन ज्वाइन एनी टाइम। पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम लाइव अपने बाहर भेजते हैं, ये वहाँ जाएंगे, डेटा कलेक्ट करके आएगा तो फिर उसको काम होगा। और ये पूरा बनने के लिए बच्चों को सारा सिखाया समझाया जाता है आपको। ये देखिए डेटा जब यहाँ आता है तो स्टूडेंट्स इस पर काम करते हैं, काम जब उनको एक्सपीरियंस मिल जाता है प्रोजेक्ट का, लाइव प्रोजेक्ट का, देन दे कैन डू बेटर। किसी भी इंडस्ट्री में आराम से कम से कम इतना तो सीख जाते हैं कि वो जॉब कर पाएंगे। सारे स्टूडेंट, सारे प्लेसमेंट्स हैं हमारी। प्रेम कुमार ये आईटीआई करके आए हुए थे, मानसी इन्होंने एमएससी किया हुआ था। ऐसे ये मिस्टर साबिज नासिर है जिन्होंने एमएससी एनवायरमेंटल साइंस से किया था। बट एक जो आजकल फॉरेस्ट ऑफिसर में या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो वैकेंसी निकल रही है वो जीआईएस बेस्ड निकल रही है, उनको डिप्लोमा करना पड़ा और आज के टाइम में ये कबोता, अंधेरी, टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट में एज ए जीआईएस एक्सपर्ट काम कर रहे हैं। ऐसे ये है डॉक्टर धीरज, कंचन कुमार, डॉक्टर राहुल थापा। और ये हमारे प्रोग्राम्स हैं जो हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, लाइव प्रोजेक्ट में एक्सपीरियंस देते हैं और 100% जॉब असिस्टेंस भी देते हैं। 1 ईयर का प्रोग्राम है, पीजी डिप्लोमा इन इन्फॉर्मेटिक्स। 6 मंथ के प्रोग्राम, छोटे प्रोग्राम्स हैं। कुछ सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं जिनको अपनी एमफिल, पीएचडी, थीसिस, रिसर्च करना होता है, उसके रिगार्डिंग है। और फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी हम लोग करते हैं, टीचर्स के लिए भी हम ये प्रोग्राम चलाते हैं। हमारे सारे प्रोग्राम ऑनलाइन भी चलते हैं, ऑफलाइन भी चलते हैं, रेगुलर में भी चलते हैं, वीकेंड भी चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं वो फ्राइडे, सैटरडे, संडे देखते हैं, और जो नॉर्मल है वो मंडे टू फ्राइडे स्टूडेंट्स जॉब को करते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड आप लोगों के लिए ऑप्शंस अवेलेबल है। ये कंपनियां हैं जहां पर आप, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे आरबीआई हो गई, राइट्स हो गया, अदानी है, जेपी है, रेल विकास निगम है, वर्ल्ड बैंक है, फिर एनएचआई है। ये सारे के सारे कंपनियों में रिमोट सेंसिंग जीआईएस स्टूडेंट्स की जरूरत पड़ती है, जिनको मॉडर्न सर्वेइंग टेक्निक्स आना चाहिए, वो लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग भी गूगल पे जाके, मेरी बात पर ट्रस्ट मत करो, आप गूगल पे जाके देखो कि आरबीआई जब वैकेंसी निकालती है तो क्या क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी मांगती है। एनएचआई जब निकालती है, राइट्स, डीएफसीसी या जेपी या अदानी, इस तरीके के लोग, वेबकॉस, ये जब वैकेंसी निकालती है तो क्या क्राइटेरिया रहता है इनका एलिजिबिलिटी का, और स्किल्स क्या क्या मांगती है, सॉफ्टवेयर कौन कौन से चलाना मांगती है। तो आपको पता लगेगा कि मैं किस लेवल क्या आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। ये सारी फैसिलिटीज हम लोग देते हैं। अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन हम लोग रोज तो आपको नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ, मैं आपको चैट बॉक्स में कुछ लिंक भेज रहा हूँ, उस लिंक के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक का लिंक है हमारे पास यहाँ पे, आप इसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे एक दूसरा लिंक है, आप इससे भी कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और आप लोग अपने व्यू जरूर दीजिएगा। अभी हमने जो आपके सामने डिस्कस किया वो आपको कैसा लगा, आपको क्या क्या समझ आया। आप इसमें राइट, मैंने भी जो लिंक आपको भेजा है जिसमें लिखा होगा पोस्ट अ रिव्यू टू अवर प्रोफाइल, इसमें जरूर क्लिक कीजिए। जब यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको हमें कुछ कमेंट्स दे सकते हैं कि हमारा आप क्या समझ आया, आपको कैसा लगा। आपको कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग पूछिए। कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के? रजनी सारस्वत, ऋतु सारवत,
पवन कुमार, कोई डाउट्स है अगर आप लोगों के तो आप लोग पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको पूछने में प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में जाके अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। नो क्वेश्चन? You can write here. Are you simply okay? ठीक है, थैंक यू। आप लोग अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। अच्छा, रजनी सरावत ने पूछा ये डिप्लोमा कोर्स कोई भी कर सकता है? यस यस रजनी, कोई भी इस प्रोग्राम को कर सकता है। ग्रेजुएट जो फाइनल ईयर में है या फाइनल पास हो चुका है, ग्रेजुएशन इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर वो मास्टर्स है तो वो मास्टर्स भी बड़े आराम से इसको अप्लाई कर सकता है। मास्टर्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन डू दिस वेरी इजीली। इसमें स्कॉलरशिप फैसिलिटीज आप लोगों को देते हैं। एक एंट्रेंस एग्जाम होगा, उस एंट्रेंस एग्जाम में अगर आपको ठीक ठाक नंबर आते हैं तो 15 से 20% का स्कॉलरशिप मिलेगा। इसके साथ साथ आपको जिसकी जो फी होगी उसमें भी आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे आज आपने ज्वाइन किया, हमारा सेमिनार ज्वाइन किया है, अगर आप बताते हैं कि हमने आपका एक सेमिनार ज्वाइन किया था तो वहाँ पे आपको कुछ स्पेशल डिस्काउंट मिल सकता है इस प्रोग्राम में। और इसमें 100% प्लेसमेंट है, ध्यान रखना सारे लोग। ये क्योंकि हमने जो एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं ये सारे लाइव प्रोजेक्ट के एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। मैंने कहा ये दोनों हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रोग्राम चला रहे हैं। ये प्रोग्राम्स हम दोनों चलाते हैं। आप अगर ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन कर सकते हैं। रितु सक्सेना ने क्वेश्चन पूछा है ना, अभी तो क्लासेस वैसे ऑनलाइन चल रही हैं, लेकिन अगर यूनिवर्सिटीज ने यूजीसी ने हमें अप्रूवल दिया तो हम लोग ऑफलाइन भी इसको कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हॉस्टल फैसिलिटीज वगैरह हैं, आराम से आप रह सकती हैं। अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं तो ऑफलाइन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप, अदरवाइज ऑनलाइन तो चल रहा है। एग्जाम अभी तो कंफर्म नहीं है क्योंकि सिचुएशन आपको पता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कॉलेज ऑफलाइन एग्जाम ले रहे हैं, कुछ ऑनलाइन एग्जाम्स ले रहे हैं। हमारे जो एग्जाम्स हुए हैं लास्ट टाइम वो ऑफलाइन हुए हैं, ऑनलाइन हुए सॉरी। अब जैसे जैसे सीजन ओपन, जैसे जैसे यूनिवर्सिटीज ओपन होगी, पेंडेमिक सिचुएशन थोड़ा कंट्रोल में होगा तो हम ऑफलाइन एग्जाम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अंशु राघव ने अपना नंबर डाल दिया है, आप इनसे बात कर सकते हैं। यहाँ पर हाँ, यहाँ पर मैं एडमिशन इंचार्ज का भी नंबर आपको लिख देता हूँ, आप इनसे डिटेल में जानकारी ले सकते हैं रिगार्डिंग एडमिशन। आप लोग अपना रिव्यू जरूर डाल देना कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा, आपको क्या समझ आया। रिव्यू का लिंक मैं यहाँ पे आप लोगों को दे देता हूँ। आप सारे लोग जो यहाँ पर हैं 14-15 लोग, ज़्यादा तो है नहीं, मुझे नहीं पता कि इतने सारे स्टूडेंट्स में से ये तो सुनीता वेलिमा मैम बताएंगे कि वाई वेरी लेस प्रेजेंट क्या बोलते हैं इसको, स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके ओके, सुनीता मैम ने भी पूछा है फीस स्ट्रक्चर और कोर्स डिटेल भी डाल दीजिएगा। श्योर डाल देंगे। हमारी अंशु मैम है, ये अंशु मैम आप इन दोनों स्टूडेंट्स को, रजनी को और एक स्टूडेंट और है हमारे पास जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था, 2 स्टूडेंट, रितु सरावत ने पूछा था। रजनी और रितु सरावत ने एडमिशन की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मांगी है। अंशु मैम आप एक बार देख लीजिएगा इनको क्या क्या डिटेल भेजनी है। यस सर, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिया है ग्रुप में। एक्चुअली हमारा न्यू सेकेंड वेबिनार स्टार्ट होने वाला है सर, उसमें जो लोग जुड़ गए हैं तो प्लीज आप इसको आप बाइंड अप करें। और बाकी के जो कॉन्टैक्ट है वो मैंने नंबर शेयर कर दिए हैं, तो मैं कॉन्टैक्ट कर लूंगी सर इनसे। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू रजनी मैम, सुनीता मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम फ्रॉम बिरौल कॉलेज। थोड़ा एग्जाम था मैडम, थोड़ा सा इसलिए थोड़ा फर्क पड़ा है काफी बच्चों पे। और कोई बात नहीं। यस मैम, कोई नहीं, जब आप फ्री हो जाएंगे हम एक बार दोबारा ट्राई करेंगे कंटिन्यू करने के लिए। ओके मैम।
जी, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। ओके मैम। आप अपने स्टूडेंट से यहाँ पे रिव्यू डलवा दीजिएगा आज के सेशन के बारे में, ठीक है? मैंने लिंक आप लोगों को ठीक है भेज दिया। सर, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली।